आज की जो वीडियो है आई थिंक ये इट इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट मैन। आप लोगों को लगता है शायद because I'm a woman I talk a lot about women's rights of course and women empowerment which is a passion of mine no doubt, but फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद she's a man hater which I have never been by the way. I have worked enough with men and women. I feel the pain of I've seen the pain of both genders. So आज की video is just for men. It's just about men and hopefully women that love these men will gain some perspective and hopefully change their behavior. Because मैं आपको I'm here to tell you that yes women get abused but men also get abused and men also get hurt and very deeply. जो pain का level है emotional level of pain it is the same whether it's a woman or a man. लेकिन मर्द hurt different तरीके से होते हैं और चूँकि हम औरतें हैं हमें इतनी समझ नहीं होती कि हमारे कौन से actions हैं जो मर्दों को actually hurt कर रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट टुडे बिकॉज हम औरतें हमें अटेंशन चाहिए होती है, हमें मोहब्बत चाहिए होती है, हमें तारीफ चाहिए होती है जिसकी वजह से हमें वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स. सो वी थिंक द सेम थिंग दैट इफ मेन आर गेटिंग praise, if men are getting my attention, then that holds the same value, which it has some value, not the same as it has for women. लेकिन जो चीज़ मर्दों को हर्ट करती है 100 गुना ज़्यादा औरतों के मुकाबले में, let's talk about that. And that is when you criticize a man on a few critical, very important aspects. यकीन करें आप अगर एक खंजर लेके उसके दिल में उतारें तो वो तकलीफ जो है it is the same level. And I encourage the men that watch this video to comment on this if it's correct or not. आप जब एक मर्द की शनाख्त, उसकी मैस्कुलिनिटी को अंडरमाइन करेंगी, that is the most painful thing for a man. What is his masculinity based on? जो उसकी शनाख्त है as a provider, as the caretaker of the family. उसके ऊपर जब ख़ास तौर पे बीवियां जब क्रिटिसाइज करती हैं कि तुम पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई, तुम्हारे साथ शादी हो गई, तुम प्रोवाइडर अच्छे नहीं हो, ये चीज़ मर्द को एक बहुत डीप लेवल पे जाके हर्ट करती है. It is really truly just like you were killing him in that moment. और वो उस वक्त हर ऐसे कमेंट, हर ऐसे झगड़े, हर ऐसे इंटरेक्शन में जिसमें बीवी अपने खाविंद की मैस्कुलिनिटी को अंडरमाइन करती है, वो एक छोटी सी मौत मरता जाता है. Ultimately, he is like a dead person inside. He's very, very unhappy. So, हम लोग क्या करते हैं, औरतें हम ये करती हैं कि खाविंद को अपनी तरफ से इनकरेज करने के लिए कि देखो वो फलाने ने कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ली है, देखो फलाने ने अपनी बीवी को कितना अच्छा घर बना के दिया, तुमसे क्यों नहीं अभी तक हो सका, तुम इतने सालों से लगे हुए हो, तुमसे क्यों नहीं हो सका. ये चीज़ें they are extremely damaging to your relationship because when you are making a person die inside every day, every time, guess what is going to happen? He's going to start moving distant and he's ultimately the distance is going to be so much कि आपस का वो फासला तय ही नहीं हो सकता. And then of course he's going to go and find happiness somewhere else where he gets validation, where he gets a little bit of reprieve. सोचें आप थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें. आमतौर पे हमारे माशरे में ख़वातीन घर पे होती हैं as wives, they are taking care of the home, taking care of the children. जो हस्बैंड बाहर जाता है वो दुनिया में जाके धक्के खाता है कमाई करने के लिए, वो अपने बॉस के हाथों जलील होता है, कभी कॉलीग्स के हाथों भी जलील होता है, कभी कभार उसको अपनी अना मारनी पड़ती है, कभी उसको अपनी खुदी का गला घोंटना पड़ता है. ये सब कुछ वो कर रहा होता है फॉर हिज फैमिली because that's his identity, that he's the caretaker of his family. वो बाहर से धक्के खा के जलील होके जब घर आता है, वो घर उसके लिए एक सैंक्चुअरी होनी चाहिए where he's welcomed, he has respect. वही चीजें, ताने और जूते उसको घर पे ना खाने पड़े. That's what he's coming to. लेकिन घर भी एक जहन्नम बना होता है, वहां पे भी उसको ताने और जूते ही खाने पड़ते हैं. So those kinds of men become very, very unhappy inside, and then of course their behavior changes towards the wife. तो ये जो emotional manipulation है, इसमें हम औरतें महारत रखती हैं. ये हमारी नेचुरल स्किल है, अल्लाह ताला ने दी हुई है. बट इसको हम जब नेगेटिव तरीके से यूज करती हैं, it is very damaging for the men.
नाउ मदर्स डू इट एंड वाइव्स डू इट। औरतें अपने, चूंकि इसकी बैकग्राउंड भी ये है कि हमें औरतों को चूंकि फुली डिपेंडेंट कर दिया गया है मर्दों के ऊपर, तो हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी मेल फिगर हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है हम उसको फिर इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। बेटों को शुरू से ही माँ इमोशनली मैनिपुलेट करके ही रेज करती है, क्योंकि माँ और बेटे का बॉन्ड डिफरेंट होता है और वो उस मैनिपुलेशन से कभी निकल नहीं पाता। अब बाद में जब बीवी इक्वेशन में शामिल होती है वो भी इमोशनल मैनिपुलेशन की माहिर होती है। तो दोनों के ड्रामों के दरमियान, और मैं इसको ड्रामा ही कहूंगी क्योंकि ये मोस्टली ड्रामा होता है कि I want to win against my mother-in-law और the mother-in-law is thinking I want to win against my daughter-in-law। आपस में उन दोनों का झगड़ा होता है, तख्ता मश्क खामिन बना होता है और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि इसको भी खुश रखो उसको भी खुश रखो, और जाहिर है वो दोनों को खुश नहीं रख सकता, तो फिर दोनों ही कंप्लेन कर रही होती हैं, यू आर नॉट अ गुड सन, यू आर नॉट अ गुड फादर। सो वो वही वाली बात है, डैम्ड इफ आई डू डैम्ड इफ आई डोंट। किसी तरीके से वो जीत नहीं सकता, अंदर ही अंदर ही स्टार्ट्स टू फील लाइक अ फेलियर। व्हेन ही फील्स लाइक अ फेलियर, then guess what is going to happen? He will be a failure, and then he will do the things that will not be of, that we don't desire. They are not highly desirable things that he will do, whether it is affairs, whether it is becoming very careless, जो भी है। मर्द को अगर आपने अपने उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना है, उसका बड़ा आसान तरीका है, appreciate him for the things that he does, try to ignore the things that are not very desirable. Obviously I'm talking about people that are generally good. मैं वो वाली बात नहीं करी लोगों के एतराज आने शुरू हो जाते हैं, what if he's cheating on me, what if he's doing this। अगर चीट कर भी रहा है तो थोड़ी देर बैठ के सोचें कि कहीं आपके बिहेवियर ने तो नहीं उसको उस चीज की तरफ माइल किया। I know feminists start screaming about this stuff कि you're not making the man responsible for his actions। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, आप एक झंडे तले खड़े होकर नारे बुलंद करते रहें, that's a different story। If that's what you want to do, you don't need to listen to my videos, because मैं वो बात करती हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में देखी है। प्रैक्टिकल बात के ऊपर लोगों के बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई हो सकते हैं, मैं वो बात करती हूँ। मैं आइडियलिस्टिक किताबी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो प्लीज understand, I feel for the pain of the men. I have seen it, I have witnessed it। तो number one complaint अगर emotional manipulation की है, तो number two complaint I would say without a doubt that I get from men, especially from husbands, and husbands, believe me, that are having affairs, they don't want to have affairs, they love their wives, they love the family that they have created, but the complaint they have is the lack of physical intimacy in the relationship। This is a topic that has been taboo in our culture, but it needs to be addressed because it's so important and it is destroying marriages। और इसी की वजह से अभी बहुत debates हैं about second marriage, about men having affairs, और ये है और वो है। लेकिन मसला ये है कि मैं कैसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के मर्दों को ब्लेम करना शुरू कर दूं, जब मुझे मालूम है, जब मैं काउंसलिंग करती थी, जब मैंने कपल से बात की है, बहुत ज्यादा कपल से, और मसला दोनों तरफ होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। देखिए, अगर तो एक बंदा शुरू दिन से ही हैबिचुअल चीटर है तो क्वेश्चन ये बनता है आपने उनसे शादी क्यों की, या अभी भी मैरिज में क्यों है, सो व्हाई आर यू स्टिल डीलिंग विद दैट। लेकिन अगर बंदा ठीक था और वो इस तरफ चलने लग पड़ा है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, और मैंने बहुत ज्यादा केसेस में ये रीजन देखा है विदाउट फेल। women don't like to admit it, they say everything is fine, but everything is not fine। men are typically going to want physical intimacy at a higher level than women do। औरत इतनी चेंज हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिलेशनशिप का, और यही आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हेन यू गोइंग इनटू द मैरिज, दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू ईच अदर। अब अगर आपका बिकॉज ऑफ हार्मोनल रीजंस, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, आपकी एज वो आ गई है एंड यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, but you are holding someone captive in your marriage, what else are they supposed to do? वो जाके टक्कर मारे, पहाड़ से छलांग मारे, क्या करें? तो then they basically find a way, whether it is through a second marriage or through affairs, which I have to say this here, कि इसी वजह से गालिबन इस्लाम ने राइट दिया हुआ हस्बैंड को फॉर अ सेकंड मैरिज कि अगर है ऐसी सिचुएशन
तो लेट देम बी इन अ मैरिज वेयर इट इज हलाल, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही. और बाय द वे वो आपकी मैरिज को भी सेफ गार्ड करता है, बिकॉज you know with affairs the fear that women have is that he might leave me, and actually a lot of women I know that have come to me that say affairs वो चला ले, दूसरी शादी नहीं मैं करने दूंगी. और आप वो टक्कर ले रही हैं उस वक्त अल्लाह के कानून से, अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आप उस आदमी को पुश कर रही हैं. मैं आपको ये बात गारंटी से कह रही हूँ, आई नो बहुत चीखेंगी इसके ऊपर फेमिनिस्ट, मैं गारंटी से ये बात कह रही हूँ. आई नो मैनी मैन दैट आई हैव काउंसल्ड जो अफेयर सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि उनकी मैरिज बच जाए, क्योंकि वो उस मैरिज में इस कदर तंग आ चुके होते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल अब्यूज और लैक ऑफ इंटीमेसी और व्हाटएवर. वो इस कदर तंग आ चुके होते हैं कि दे कैन नॉट सर्वाइव without finding some way to relieve their pressure, and that is through an affair, जहाँ पे उनको थोड़ी देर के लिए एक mental reprieve मिल जाती है. So I am a woman. I understand how women feel. I know the pain of affairs. I understand all of that. But I am still going to say this कि हमेशा आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट लगा के कि ये नहीं कह सकते सिर्फ औरतें अब्यूज होती हैं, मर्द बिल्कुल अब मर्द भी अब्यूज होते हैं. और जब औरत अब्यूजर बनने पे आती है, जो मैंने देखा है, when she becomes toxic there is no bigger abuser than a woman. They can be extremely toxic. So we have to realize that physical intimacy is a really big part of marriage. Just because now you have been together for 10, 15, 20 years and you feel, you know what, I'm done, I'm not interested anymore. No. This is something that if your partner is interested, then you have to find a way, figure out. Maybe you can see a doctor, maybe you can see a psychiatrist. Whatever you need to do, you need to take it as your responsibility to help with this situation. And if you don't want to, if you say, you know what, I don't want to, that's your right. But then you don't have the right to stop him from taking on another wife or having an affair. Then you need to zip your lips and take it for what it is, because you're making a choice. What you don't have the right to do is making someone your slave. कि अब ये prison है, इसमें खड़े रहो. There's nothing else you can do. This is very wrong, very unfair, and it is abuse. Please make no mistake about it. It is abuse. और अब आप किसी को abuse करेंगे तो याद रखें वो देख रहा है और उसके पास जवाब आपको देना पड़ेगा. It's very important to understand it. Third element where I see men getting abused is that we have all these expectations from them. As a society, as a culture, we have these expectations that men are strong, men are macho, men should not have emotions. You can be strong, you can be macho, you can be all those things and at the same time be very emotional. You know, मेरे courses में मेरे स्टूडेंट्स को पता है आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई शो लव, आई शो एक्सप्रेस लव वेरी ओपनली, एंड आई ऑल्सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज पेनफुल और आई सी समबडी एल्स इन पेन, आई गेट इमोशनल. आई मे हैव टीयर्स इन माई आईज, आई माइट स्टार्ट क्राइंग. It's very normal. Does not mean that you will doubt that person's or my strength at that time. I think that showing emotions is actually strong. Why? Because you are comfortable being vulnerable. If I am able to be vulnerable in front of you, that means I can take it. I can take rejection. I have the strength inside of me to take rejection. जो शख्स emotionally अपने आप को बंद करके ढका छुपा के रखता है वो तो वीक होता है. लेकिन यही हम अपने मर्दों के साथ करते हैं कि इमोशंस ना वो शो करें, बस अपने आप को बोतल में इमोशंस को बंद रखें, और अगर इमोशंस शो की तो हम उनको वीक का कहीं लेबल ना लगा दें. इस डर से लड़के और बाद में मर्द बिल्कुल इमोशंस शो नहीं करते. अब मैं इसमें मुझे देयर इज एन एग्जांपल दैट आई ऑलवेज रिमेंबर. फ्यू इयर्स अगो व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस, जो मेरा वीडियोग्राफर था, यंग पाकिस्तानी लड़का, मे भी 23-24 का होगा, एंड उसने देखा कि कुछ वीडियोस बनाई और उसने देखा कि शायद इन this ma'am knows some stuff, maybe I can ask her a question. So he asked me after we were done with the shoot, he said, can I ask you a question? I said sure. He said, मेरा मसला ये है मैम कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है. So 23-24 के लड़के की ब्लड प्रेशर का इशू, आई वाज सरप्राइज्ड. और दूसरा मेरा इशू ये है कि सख्त मुझे इंसोम्निया है, मैं 2-2, 3-3 दिन सो नहीं सकता. आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंसोम्निया इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. आपको हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं, आप फंक्शन नहीं कर पाते. सो आई जोक्ड विद हिम कि तुम मेरे वीडियोस किस तरह बना रहे हो, तुम तो फंक्शन, यू शुड नॉट बी एबल टू फंक्शन. एंड ही सेड, वेल आई हैव बीन लाइक दिस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स और ये वो. सो आई आस्क्ड हिम हिज सिचुएशन कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट्स द स्ट्रेस. एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन in a family,
the only earning member. तो उससे उसके ऊपर जो प्रेशर था उसने बहुत स्ट्रेस क्रिएट की हुई थी. एंड ही वाज सो यंग व्हेन दैट स्टार्टेड. ही फेल्ट वेरी इनकेपेबल, इनएडिक्वेट, बट ही वाज द एल्डेस्ट सन, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन. सो उसने सीना तान के वो शुरू हो गया और अब ये हालत थी कि ना उससे सोया जा रहा था, ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई था. So I did some processes with him. I understood कि he needs to, इसने block की हुई अपनी emotions, and I know some techniques how to get a person in touch with those emotions. तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने बैठ के he started crying and he was like, I'm sorry. I said, don't be sorry, please cry, let the tears come out, let them just come out and tell me how you're feeling. So as the tears were coming out, he would say, I feel so inadequate, I feel like a failure, and I said nothing. I just kept encouraging him to feel his emotions, let the tears come out. बच्चों की तरह वो रोने लग गया मेरे सामने. I just let it come out. और थोड़ी देर बाद जब वो ठीक हुआ, तो I said, you need to understand, I have so much respect for you, I have compassion for you. This was very difficult to do. It takes courage to do what you did. I appreciate you. So thank you for letting me help you. And he felt, very relieved. But उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैम मेरा तो ऐसा वो रोना खुला है, मैं तो रोना बंद ही नहीं करा था. मैंने घर जाके अपनी अम्मी के गले लग के इतना रोया और मेरी अम्मी भी रोई, बट मैं रोता जा रहा था. तो मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? एंड ही सेड उसके बाद मैं कोई 12 घंटे सोया. And I was so happy because that's all that was needed. He was taking Xanax, he was taking sleeping pills. उसको डॉक्टर के पास जाता था, वो उसको मजीद stronger sleeping pill दे देते. ये नहीं सोच रहे थे कि एक यंग लड़का है, इसके क्या, he should not be on pills. So mashallah, he got better, he got rid of the blood pressure also, because this was all like a pressure cooker, he was like a pressure cooker और उसका कहीं से pressure release ही नहीं हो रहा था. All he needed to do was cry a little bit. It's okay for men to cry. This is wrong that strong men don't cry or men don't cry or macho क्या होते हैं? Macho men are basically bullies. Bullies वो होते हैं जो weak होते हैं, जो अपने से weaker को target करते हैं, वो bully होते हैं. तो वो तो strong नहीं होते. स्ट्रॉन्ग तो अगर हम स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखते हैं, हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट, येट ही वाज नॉट माचो एट ऑल. वो रोते भी थे, वो हंसते भी थे, वो काइंड भी थे. अपनी वफात तक अगर कोई हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कर दे या उनकी कोई चीज उनके सामने आ जाए, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे. That's how much he loved his wife. वो किसी की पेन के बारे में अगर सुनते थे, कोई अपनी तकलीफ बयान कर रहा होता था, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे तब भी. और वो जो एक हदीस है, जब एक सहाबी ने अपना रिग्रेट, डीपेस्ट रिग्रेट ऑफ हिज लाइफ, वो बयान कर रहे थे स्टोरी पूरी कि किस तरह से उन्होंने ज़माने जाहिलियत में अपनी बच्ची को दफन किया था. वो स्टोरी सुनते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए थे. सो लुक एट ऑल दोज थिंग्स. हम किसके एग्जाम्पल पे चल रहे हैं? और फिर ये वो बॉक्स है जिसमें हम जबरदस्ती अपने बेटों, अपने खामिदों, अपने भाइयों को फिट करने की कोशिश करते हैं, और ये बॉक्स इसको तोड़ के फेंकते हैं. लेट द गाय बी हु ही इज. सम मेन आर गोइंग टू बी नेचुरली मोर सेंसिटिव, सम मेन आर गोइंग टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, सम मेन आर गोइंग टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल और व्हाटएवर. जो है उसको होने दें. और अपने हस्बैंड को, खास तौर पे ये मैं खवातीन को कह रही हूँ फॉर मैरिजेस, बिलीव मी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अफेयर्स इज नॉट, बिकॉज मैं उन लोगों से डील नहीं करती हूँ जो हैबिचुअल चीटर्स हैं, जो जिनका किरदार ही खराब है. जाहिर है वो मेरे पास क्यों आएंगे फॉर अ सेशन. मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली majority of men are decent men. हम सब में कोई ना कोई बुराई है, हम सब में कोई ना कोई अच्छाई भी है. Nobody is perfect. Majority of men I see are decent men, and they go into this affair thing because of what is lacking in the marriage, the abuse they're getting in the marriage. But वो abuse recognize नहीं होती, क्योंकि वो emotional abuse है जिसको वो मर्द express भी नहीं करता. वो नहीं आके किसी को कहेगा my wife is abusing me, because he will be embarrassed to say that. और ये जो खास तौर पे physical intimacy की abuse है, वो तो किसी से भी नहीं कह सकता. वो अपने किसी closest friend को भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये उसकी बीवी की बात है. ये वो अपने अंदर दफन करके बैठा होता है. कभी कभार मेरे जैसे लोगों से बात करने पे वो पहली दफा खुल के बताते हैं कि this is my issue, but this is the biggest, one of the biggest issues. So if you want to address these marital problems right now, please understand कि मर्द को एक विलन बनाना छोड़ दें. उनको